اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم غیر جماعت کے عزیز طلباء السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو پچھلی کلاس میں ہم نے رشید احمد صدیقی کا مضمون دعوت مکمل کر لیا۔ تو آج ہم اس کے مشقی سوالات کریں گے۔ تو پہلے اس میں کچھ نئے الفاظ دیے گئے ہیں۔ اگر آپ پیج نمبر 68 اور 69 پڑھیں گے دیکھیں گے تو یہ نئے الفاظ آپ یاد کریں گے تاکہ آگے چل کر آپ کو یہ کام آ سکیں۔ تو آج ہم نے پیج نمبر 70 یعنی 70 اگر آپ نکالیں گے تو ہم اس کے مشقی سوالات کریں گے۔ تو سوال نمبر 2 ہے، اس میں پہلا الف پارٹ ہے، اس میں دعوت۔ انشاء کے درجہ ذیل جملوں پر غور کر کے دعوت دینے والوں اور دعوت میں شریک ہونے والوں پر کس کس طرح سے چوٹ کی گئی ہے۔ تو رشید احمد صدیقی کی اس انشاء میں ذیل جملوں پر غور کرنا ہے۔ تو پہلا جملہ ہمارا جو ہے تو رشید احمد صدیقی بتا رہے ہیں کہ دعوت دینے والوں یعنی کہ میزبان اور مہمان دونوں پر چوٹ کی گئی ہے۔ تو پہلا جو الف اس میں ہے، پہلا پارٹ، ہمارے سامنے بھی اختیاری رکھ دی گئی، ابھی ہم سب نے مشکل سے 2-1 لقمے فروغ کیے ہوں گے کہ ایک حملہ ہوا، چند سورما ہم پر ٹوٹ پڑے، جو کچھ سامنے تھا اسے چٹ کر آگے بڑھ گئی۔ تو اس پہلے پارٹ میں رشید احمد صدیقی اس دعوت کا ذکر کر رہے ہیں جب ایک امام صاحب کے ہاں یہ دعوت پر گئے تھے، تو جو ہی افطاری ان کے سامنے رکھ دی گئی تو 1-2 لقمے انہوں نے کھائے ہوں گے، تو ایک حملہ ہوا تو چند سورما یعنی جوان ان پر ٹوٹ پڑے، جو کچھ سامنے تھا وہ ان کے سامنے اٹھا کر لے گئے تو اور وہ کھا گئے۔ تو جو مہمان تھے وہ حیرت زدہ ہو کر ان کی طرف دیکھنے لگے۔ تو یہاں یہ ان پر ایسے چوٹ کر رہا ہے کہ یہ ایک غیر اخلاقی حرکت تھی اور بدتمیزی تھی۔ ایسا سمجھا جاتا ہے کہ ایثار ثواب کے لیے ایسا کرنا ضروری ہے۔ تو آگے دوسرا پارٹ اس میں تیسری مصیبت، بے پارٹ میں تیسری مصیبت، جو کھانا پیش کیا جا رہا تھا اس کے دوسرے عزیز اقارب نہ معلوم کون کون سی اور تھے جن کی عدم موجود کھانے کو ہاتھ لگانا گوارا پان ہوتا۔ تو اس میں بھی رشید احمد صدیقی دعوت کے بارے میں ذکر کر رہے ہیں۔ جیم پارٹ اس کا ہے، مشکل یہ ہے کہ کافی سے انکار کیجیے، بعض میزبان اس طور خفا ہو جاتے ہیں کہ اس کے علاوہ بعض دعوتوں میں عجیب قسم کے بدتمیزی سے سابقہ پڑتا ہے۔ تو اس جیم پارٹ میں رشید احمد صدیقی ایسی دعوتوں کا ذکر کرتے ہیں کہ جہاں پر میزبان اکثر بیشتر خفا ہو جاتے ہیں کہ ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں کیونکہ آپ نے کچھ کم ہی کھایا، اور بعض دعوتوں میں عجیب قسم کی بدتمیزی سے بھی سابقہ پڑتا ہے۔ تو اگر کافی سے آپ انکار کریں گے، کافی پینے سے، تو میزبان ناراض ہو جائیں گے، تو آپ کو انکار کرنے کی گنجائش نہیں ہوتی ہے۔ تو اس کا تیسرا جو پارٹ ہے، مندرجہ ذیل الفاظ کی جمع صورتوں میں اپنے جملوں میں استعمال کیجیے۔ رکا یعنی کہ خط، چٹھی، معتقد یعنی اعتقاد رکھنے والا، نسب، خاندان، مسجد، تو آپ کو معلوم ہے مسجد
इमाम, तो मस्जिद का इमाम, फ़कीर, महल, इनको जमा सूरतों में जुम्लों में इस्तेमाल करना है। तो नंबर चौथा जो हमारा क्वेश्चन है, चौथा सवाल, दर्ज झेल इक्तिबास का सलीस लिखिए। तो इसका सलीस लिखना है। हाँ, तो पहली दावत मुझे ऐसे साहब के यहाँ खानी पड़ी जो कपड़े बुनते थे। तो रशीद अहमद सिद्दीकी इसमें पहली दावत का जिक्र करते हैं जो कि एक कपड़े बुनने वाले के यहाँ खानी पड़ी। गाजी मियाँ के मोतक़िद थे, यानी कि वो गाजी मियाँ के एतक़ाद रखते थे, राह नजात पढ़ते थे और कोकीन बेचने की सज़ा पा चुके थे। तो इस बंदे के जो राह नजात पढ़ाते थे, वो एक बार कोकीन यानी कि एक जो नशावर चीज़ है, तो इस नशावर कोकीन के भेजने में जो गैरकानूनी है उसकी में सज़ा पा चुके थे। तो सारी बस्ती को उसने मदऊ किया था। मई का महीना और दोपहर का वक्त, मकान व मैदान में कोई नशीब फराज ऐसा न था जहाँ खाने वाले न बैठे हों, फर्श और दस्तरखान का वहाँ कोई दस्तूर न था। जहाँ जिसको जगह मिल गई बैठ गया, एक नीम की जड़ पर बैठ गया। तो नीम एक दरख्त है। तो रशीद अहमद सिद्दीकी कह रहे हैं कि वहाँ जगह ही नहीं थी किसी जगह बैठने की, मैं एक दरख्त की जड़ पर बैठ गया। एक हाथ में गरम गरम तंदूरी रोटी दे दी गई, मिट्टी के बर्तन में ज़मीन पर सालन रख दिया गया। बेहश्ती ने मशक में ताम चीनी के गंदे गिलास में पानी पिलाना शुरू कर दिया। तो इसके बाद इंशाया की तारीफ कीजिए, उर्दू में इंशाया की उर्तिका पर नोट लिखिए। तो पहले हम पहला क्वेश्चन जो दावत इंशाया का ज़ेल जुम्ल फिक्र के और दावत देने वालों, दावत के शरीक होने वालों के किस तरह चोट की गई है। तो पहला जो इलिफ पार्ट, इसमें हमारे सामने भी इफ्तियारी रख दी गई, अभी हम सब ने मुश्किल से दो एक लुकमे फरोग किए होंगे कि एक हमला हुआ, चंद सुरमा हम पर टूट पड़े, जो कुछ सामने था उससे चढ़कर आगे बढ़ गई। तो इसका जवाब है, इन जुमलों में रशीद अहमद सिद्दीकी एक इमाम मस्जिद के यहाँ इफ्तियारी की दावत का ख्याल बयान करते हुए मेज़बान और मेहमान दोनों पर चोट करते हैं और कहते हैं, जो ऊपर के जुमले हैं इस पर रशीद अहमद सिद्दीकी ने मेज़बान और मेहमान दोनों पर चोट करते हुए लिखते हैं कि हमने इफ्तियारी के दो एक लुकमे ही खाए थे कि कुछ लोग आकर हमारे सामने खाना उड़ाकर चट कर लिया। तो रशीद अहमद सिद्दीकी बता रहे हैं कि हमने इफ्तियारी के वक्त एक दो ही लुकमे खाए थे कि चंद लोग आकर हमारे सामने से खाना उठाकर चढ़ गए, जो उठा लिया और वो खुद खा ली। ये बदतमीजी और गैर अखलाकी हरकत मेज़बान के ईसार सवाब के लिए की गई। तो ये मेज़बान के ईसार सवाब के लिए, ताकि उसको ज़्यादा से ज़्यादा सवाब मिल सके, इसलिए ये हरकत की गई कि मेहमानों के सामने खाना उठाकर खुद खा लिया। भला ऐसे वहशी जानवरों जैसे रवैये से क्या सवाब मिल सकता है। तो रशीद अहमद सिद्दीकी बता रहे हैं कि ऐसे वहशी यानी कि जिनको वहशी जानवरों से बदतर हैं, तो ऐसे रवैये से क्या सवाब मिलता है। इस जाहिलाना हरकत और बिदअत को मस्जिद इमाम ने अपनाया हुआ है, यानी मस्जिद इमाम इन हरकत को अपनाए हुए हैं, यानी कि सवाब का जरिया समझते हैं। तो इसका बे पार्ट जो है, तीसरी मुसीबत जो खाना पेश किया जा रहा था, इसके दूसरे अजीज अकारिब न मालूम कौन और थे जिनकी अदम मौजूदगी में खाने को हाथ लगाना गवारापन होता। तो ये बे पार्ट है इसका। इन जुमलों में, बे पार्ट के जुमलों में, इन जुमलों में मुसन्निफ यानी रशीद अहमद सिद्दीकी किसी अमीर आदमी के यहाँ दावत का जिक्र करते हुए फरमाते हैं, यानी कि वो किसी अमीर आदमी के यहाँ
दावत पर गए थे तो उसका जिक्र करते हुए फरमाते हैं कि किस्म किस्म के खाने सामने रख दिए जाते हैं, यानी कि बहुत सी किस्म के खाने उनके सामने रख दिए जाते हैं। उन्हें हाथ लगाना गंवारापन है जब तक उनके अजीज अकारिब दावत में शमूलियत न करें, चाहे खाना ठंडा ही क्यों न हो। तो रशीदा मसलीक बता रहे हैं कि उनके न जाने कौन से अजीज अकारिब दावत में शमूलियत न करें, जब तक न वो न करें तब तक खाना हाथ लगाना गंवारापन समझा जाता है, चाहे खाना ठंडा ही क्यों न हो। तो इंशाल्लाह अगली जो वीडियो क्लास है तो अच्छा इसका एक और जिम पार्ट है, पहले हम ये रुका मतलब कि इनका करेंगे। तो इसका जो तीसरा क्वेश्चन है, तो इन अल्फाज को जमा सूरत में जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। तो पहला है रुका, यानी खत, चिट्ठी, उसका जमा आएगा रुकात। रुकात, मैंने रुकात गालिब का मुताला किया है, मैंने रुकात गालिब का मुताला किया है। नंबर 2 मोतक़द, यानी एतकाद रखने वाला, इसका जमा सूरत है मोतक़ादात। मोतक़ादात, मुझे आपके मोतक़ादात से कोई